Hi everyone. Today the prelims results are out, and first of all I want to congratulate everyone who passed the prelims. All the best to you for your mains, and please message us if you need any help in your mains preparation. For those of you who could not the prelims, understand that this is not the end of the world. If this was your last attempt, please look forward to your future and figure out what you need to do. Success is not defined by one exam. So all the best for your future. And if you are going to reattempt, or those of you who are going to give your first attempt in 2024, please continue with this video because I'm going to discuss most tricky questions from comprehension in two parts. And of course, I'm going to cover the rest of the questions as well eventually. First of all, I'm going to start with some tricky paragraphs or passages which were there in 2023 questions. So please watch it until end, and if you are not subscribed to our channel, please subscribe. Let us start with the first passage. This is from set A. So the question numbers that you see are from set A. The way I have selected these questions is, I was in double mind for a couple of options for these questions, as well as, I could see that many students and of course the educators are also divided on their responses to these passages. That's the reason I have chosen those questions. So let us start with the first one. Environmental problems cause health problems. Substantial changes in lifestyle can reduce environmental और health problems. So वो बोलना चाह रहा है कि अगर हम लोग लाइफस्टाइल में चेंज करें तो environmental और health के प्रॉब्लम रिड्यूस हो सकते हैं. But this idea appears almost impossible to adopt. लेकिन ये बहुत impossible है implement या adopt करने के लिए. Why? Because with environmental problems, individual efforts can be perceived as having a negligible effect and therefore lead to inertia. Individual efforts जो है वो बड़े outside bigger context में जो environmental problems है उसके लिए हमको irrelevant लगते हैं. So we don't really think much about it, and negligible effect मतलब हमको लगता है कि मेरे अकेले से क्या हो, अगर मैं अकेला कुछ करूंगा तो इतने बड़े प्रॉब्लम का थोड़ी ना कुछ सोल्यूशन निकलने वाला है. एंड दैट लीड्स टू द इनर्शिया. इनर्शिया मतलब you don't really act on it, you remain in the state where you are in. With health, on the other hand, individual choices can make the difference between life and death. ये तो एनवायरमेंट की बात हो गई, लेकिन जब अपने खुद के हेल्थ पे बात आती है तो जो चॉइसेस, लाइफस्टाइल चॉइसेस हम जो करते हैं वो लाइफ और डेथ का डिफरेंस बना सकते हैं. एंड yet, barring a few, there seems to be the same collective lethargy towards making their choices. लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग छोड़कर मैक्सिमम लोग एक लिथार्जी दिखाते हैं. कलेक्टिव लिथार्जी मतलब मैक्सिमम लोग, ज्यादातर लोग एक लिथार्जी मतलब इनएक्शन दिखाते हैं टुवर्ड्स मेकिंग देयर चॉइसेस विच आर aligned to environment, which are aligned to individual health. So that's the passage. What is the question? Which one of the following statements best implies most rational assumption that can be made from the passage? तो हमको ये passage से क्या rational assumption मिल सकता है ये पूछा है. First, we are likely to spend more money on cure than prevention. हो सकता है कि क्योंकि हम लोग एक्टिवली कोई लाइफस्टाइल के चॉइसेस नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है और हेल्थ फ्रेंडली है, इसे हो सकता है कि वी विल लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्यूर देन प्रिवेंशन. मतलब हम प्रिवेंशन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे. तो एक पॉसिबल ऑप्शन है. सेकंड इज, इट इज द जॉब ऑफ अ गवर्नमेंट टू सॉल्व आवर एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स. गवर्नमेंट के बारे में कोई भी बात ये पैसेज में की नहीं है, या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में कोई बात नहीं की है. हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो ऑन अनअटेंडेड. ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें हेल्थ और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का इंटर रिलेशनशिप कहीं भी ये पैसेज में डिस्कस नहीं किया है. राइट? या वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या नहीं है, या इंटरलिंक्ड है, अगर है तो किस तरह है, इस तरह की कोई भी बात ये पैसेज में नहीं की गई है. वैसे भी हमको लॉजिकली ये पता चलता है कि हेल्थ कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड पर हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को अनअटेंडेड जाने दें. राइट? बिकॉज अल्टीमेटली जो एनवायरमेंट के प्रॉब्लम्स है लाइक पोल्यूशन वगैरह, वो हेल्थ को तो इम्पैक्ट करते ही है. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. Last, loss of traditional lifestyle and the influence of Western values led to some unhealthy ways of living. तो ये तो बात सही है कि अपना जो वेज ऑफ लिविंग है वो दिन पर दिन अनहेल्दी होता जा रहा है. और वो क्यों होता जा रहा है? क्योंकि लाइफस्टाइल के जो चॉइसेस है हम वेस्टर्न वैल्यूज को ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं और अपने ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को भूल जा रहे हैं. मतलब ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि
जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, उनके जो वैल्यूज है, राइट, अपना लाइफस्टाइल की तरफ, तो कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है। हम ज्यादातर पिज्जा बर्गर नॉन हेल्दी फूड की तरफ मुड़ रहे हैं। सॉफ्ट ड्रिंक का बहुत सारा प्रभाव है, जबकि अपने जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है, जिसमें हेल्दी फूड, ऑर्गेनिक फूड की बात की जाती है, उसको हम भूले जा रहे हैं। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये भी एक पॉसिबल ऑप्शन है। देखो, ये दोनों में कौन सा ज्यादा रिलेवेंट मुझे लगता है, तो मुझे दिस इज अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट दैट वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्यूर देन प्रिवेंशन। मतलब ये हो सकता है कि, लेकिन मनी और कॉस्ट इसकी हमको क्या पे करना पड़ेगी, इसके बारे में ये पैसेज में कुछ ज्यादा ज्यादा नहीं, बिल्कुल बात भी नहीं की है। खाली ये बोला है कि हम लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल को चूज कर रहे हैं, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, हेल्दी नहीं है। और फिर उसका एक कारण ये हो सकता है कि हम अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज को भूल के वेस्टर्न वैल्यूज की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, विच इज लीडिंग अस टू सम अनहेल्दी वेज ऑफ लिविंग। तो मुझे लगता है बिकॉज इसमें कॉस्ट की या मनी की कोई बात की नहीं है, ये ज्यादा रिलेवेंट ऑप्शन है। तो फॉर मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। पैसेज टू, ये क्वेश्चन नंबर 33 है। There is a claim that organic farming is inherently safer or healthier. Organic farming by default safer है और healthier है, ऐसा एक claim है या ऐसे हमें लगता है। The reality is that because the organic farming industry is still young and not well regulated in India, farmers and consumers alike are not only confused about what products are best for them, but sometimes use products in ways that could harm them as well. मतलब क्योंकि ये रेगुलेटेड इंडस्ट्री नहीं है और बहुत नई इंडस्ट्री है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की, कई बार जो फार्मर्स है और जो हम जैसे कंज्यूमर्स है, हम दोनों के लिए बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अच्छे हैं। और कभी कभी हम उन प्रोडक्ट्स का सही यूज भी नहीं जानते, तो वो ना कि सिर्फ न्यूट्रल बल्कि उल्टा हमको हार्म भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑन अ लार्ज स्केल इन इंडिया, मतलब ऑर्गेनिक मतलब जिसमें केमिकल यूज नहीं किया है, ऐसे फर्टिलाइजर्स लार्ज स्केल में प्रोडक्शन इंडिया में नहीं होता है या मिलना बहुत मुश्किल है। तो कई बार फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स ऑफन यूज फार्म यार्ड मैन्योर, मतलब फार्म का जो वेस्ट होता है, राइट, अपने एनिमल लाइव स्टॉक का, उसको फर्टिलाइजर करके यूज किया जाता है, विच में कंटेन टॉक्सिक केमिकल्स एंड हेवी मेटल्स। तो उसमें भी टॉक्सिक केमिकल्स या हेवी मेटल्स हो सकते हैं। सर्टन प्लांट स्प्रेज, मतलब प्लांट पे जो स्प्रे किया जाता है, सच एज धतूरा फ्लावर एंड लीफ स्प्रे, हैव एन एलिमेंट कॉल्ड एट्रोपाइन। मतलब वो जो स्प्रे करते हैं उसमें एक एट्रोपाइन नाम का एलिमेंट होता है। इफ नॉट अप्लाइड इन राइट डोज, इट कैन एक्ट ऑन नर्वस सिस्टम ऑफ द कंज्यूमर, जो नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली हाउ मच एंड व्हेन टू यूज आर नॉट वेल रिसर्च्ड एंड रेगुलेटेड इश्यूज। तो जनरली ये बात करें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड है, राइट, लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, और ये एक परसेप्शन है, मतलब एक क्लेम है कि ये इनहेरेंटली बहुत ही सेफ और हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन इसमें भी कुछ रिस्क हो सकती है, ये पैराग्राफ बताए। और उसका एक एग्जांपल उसने दिया है, एक या दो एग्जांपल, कि वो किस तरह से रिस्की हो सकती है। और ऑब्वियसली वो बताना चाह रहा है पैराग्राफ की, कंज्यूमर और फार्मर्स को ये ज्यादा नॉलेज नहीं है कि उनके लिए क्या सेफ है, क्या हेल्दी है, क्या यूसेज क्या क्वांटिटी में उसका यूसेज करना चाहिए, इसके बारे में उनको आइडिया नहीं है, जिसकी वजह से वो हार्म हो सकता है। दैट इज द आइडिया ऑफ दिस particular passage. So what is the question now? Based on the above passage, the following assumptions have been made. Organic farming is inherently unsafe for both farmers and consumers. देखो, ये तो बोला है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज, ऐसा एक क्लेम है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली सेफर एंड हेल्दियर, बट ऐसा तो नहीं बोला कि बाय डिफॉल्ट या इनहेरेंटली वो अनसेफ है और हेल्दी है ना। कि ये तो एक परसेप्शन है, लेकिन उसके जो रिस्क है वो तो डिस्कस किया है, लेकिन ये तो पैराग्राफ में नहीं बताया कि वो बिल्कुल सेफ नहीं है या हेल्दी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो 100% गलत है। फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड। अभी ये जो स्टेटमेंट है ना, इसमें क्या देखो, ये वर्ड को ध्यान दो, इको फ्रेंडली फूड। अगर आपने इसको ठीक से नहीं पढ़ा तो आप समझोगे कि यह स्टेटमेंट सही है,
फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स नीड टू बी एजुकेटेड, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कंफ्यूज्ड, राइट, कंफ्यूज्ड अबाउट प्रोडक्ट्स, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, तो ऑब्वियसली एजुकेशन की ज़रूरत है, ये तो सही बात है। बट इट इज सेइंग इको फ्रेंडली फूड, क्या इको फ्रेंडली फूड की बात ये पैराग्राफ में की गई है? हेल्दी फूड की बात की गई है, और एनवायरमेंट का केयर करना चाहिए, लेकिन एनवायरमेंट फ्रेंडली फूड क्या होता है? तो ये पैराग्राफ में तो कम से कम एनवायरमेंट फ्रेंडली फूड की कोई कंसेप्ट नहीं बताई, इसलिए मुझे लगता है कि ये सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, और ये क्वेश्चन का आंसर और करेक्ट पूछा है तो नाइदर 1 और 2 डी होना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन वर्ड कॉल्ड इको। अगर उसने बोलता एजुकेटेड अबाउट हेल्दी फूड और हेल्थ फ्रेंडली फूड, तो मैं इसको जरूर यस बोलता था, लेकिन बिकॉज ये इको फ्रेंडली फूड बोला है, तो ये बिकॉज इको फ्रेंडली फूड की कोई बात नहीं की गई है, हेल्दी फूड की बात की गई, लेकिन ये बहुत ही डिबेटेबल पॉइंट है। अल्टीमेटली जब फाइनल आंसर की आएगी तभी पता चलेगा कि यूपीएससी ने क्या आंसर। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। साइंटिस्ट स्टडीड द वर्नल विंडो विच इज अ ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम विंटर टू द ग्रोइंग सीजन, मतलब ये जो विंटर होता है उसके बाद जो स्प्रिंग आता है, राइट, और फिर ग्रोइंग सीजन आता है, राइट, जिसमें प्लांट वगैरह ग्रो होना चालू हो जाते हैं और रीग्रो होना चालू हो जाते हैं। तो ये जो पीरियड है, द विंटर टू स्प्रिंग का ट्रांजिशन, इसको वर्नल विंडो कहते हैं, जो उसका डेफिनेशन उसने पैराग्राफ में दिया हुआ है कि वो ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम विंटर टू द ग्रोइंग सीजन। They found that warmer winters with less snow resulted in a longer lag time between spring events and a more protracted vernal window. उसने बोला है कि अगर ये विंटर वार्म है, जब टेम्परेचर एवरेज से ज़्यादा होगा विंटर में, तो स्नो ऑब्वियसली कम होगा, जल्दी पिघल जाएगा, रिजल्टेड इन अ लॉन्गर लैग टाइम बिटवीन स्प्रिंग इवेंट्स एंड मोर प्रोट्रैक्टेड वर्नल विंडो। तो इसकी वजह से ये जो विंडो है कि विंटर जल्दी खत्म हो गया, लेकिन ग्रोइंग सीजन के और विंटर के बीच का जो विंडो है उसका लेंथ बढ़ते चले जा रहा है। दिस चेंज इन द स्प्रिंग टाइम टेबल, देखो स्प्रिंग तो इधर बीच में बैठा है ना, तो उसके टाइम टेबल में चेंज हो रहा है, हैज इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड टूरिज्म। तो ये 3 सेक्टर पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एज द आइस मेल्ट्स अर्लियर, क्योंकि वार्म है तो आइस या स्नो जल्दी मेल्ट होता है। द बर्ड्स डोंट रिटर्न, इसके यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स की बात की जाए, राइट, जो यहाँ से बर्ड माइग्रेट हो गए हैं तो वो वापस नहीं आते, कॉजिंग अ डिले और लेंथनिंग इन स्प्रिंग टाइम इकोलॉजिकल इवेंट। तो जो इकोलॉजिकल इवेंट है बर्ड्स के आने की वजह से जो शुरू हो जाते हैं, तो उसमें डिले हो जाता है या उसका वो पीरियड का लेंथनिंग हो जाता है। तो ये थोड़ा-सा समझने में डिफिकल्ट है अनलेस यू ऑलरेडी नो दिस वर्नल विंडो का कॉन्सेप्ट। लेकिन लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made. ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग स्प्रिंग टू कम अर्ली एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस। ये तो ऑब्वियस है कि विंटर अगर वार्म होते जा रहे हैं तो फिर वो ग्लोबल वार्मिंग कहा जा सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी दिस पैराग्राफ इटसेल्फ इज नॉट गिविंग एनी रीजन, राइट, और हमेशा अपना इंस्ट्रक्शन क्या है कि जो भी आपका आंसर है वो पैराग्राफ के बेस पर ही देना चाहिए। यू मस्ट आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ। So this paragraph itself is not really talking about what is the reason for this, right? It is just describing the phenomena, and it is just describing the effects of that phenomena, right, on that those three industries, on the migratory birds. But it is not saying that this is caused by global warming. Although it might be a true, this paragraph is not suggesting that. So according to the instructions, I would strike this off. Let us look at the second one. Early spring and longer period of spring is not good for bird populations. See, here they say that as the ice melts earlier, the birds don't return, causing a delay or lengthening in springtime ecological event. But whether this impact is good impact or a bad impact, that the paragraph is not mentioned. Whether the birds are getting benefited because of this delay or they are getting negatively impacted because of this delay is not clear from this paragraph. So the assumption that is drawn here, that early spring and the longer period of spring events is not good for bird populations,
cannot be concluded. So here my answer would be again D. None of the statement or assumptions can be drawn from this passage. So these are some three confusing passages. I will discuss three more in tomorrow's video before I move to other questions. I've already covered all number system questions from 2023 paper. So if you have not watched those videos, please watch. If you like this video and my other videos, please subscribe to my channel. So thanks for watching this. I will see you in the next one.